A very good afternoon to all of you. This is Abhilasha Nahata, your social science teacher. So, students, today we all are going to start our new chapter of your history textbook. The name of your chapter is Rulers and Buildings. This is the fifth chapter of your textbook. Okay, so now in this chapter, basically we will study about the buildings, the different types of buildings at the time of Mughals, at the time of Delhi Sultanates, or especially between 8th to 18th century. What was the condition of different types of buildings? Who built which building? Like for example, Qutub Minar, Taj Mahal. These are like Junagadh Fort. Yeah, different types of forts are there. Those forts, we will talk about these forts, these buildings, and how their structures, the craftsmanship of that structure, etc. about in this chapter, and we will relate this to the rulers which who was who contributed a lot in making of this these types of buildings. Okay, so now just look at this, observe the picture or figure 1 given in your book. Observe this picture very carefully. Now this is the picture of Qutub Minar, first floor of Qutub Minar. This is the picture of first floor of Qutub Minar. This is the first balcony of Qutub Minar, and these are the bands. This is the balcony. This is the first floor balcony of Qutub Minar, and these are the bands. These are the different bands, and now the shape you are looking at, these are curved and angular. Okay, curved and angular, and geometric patterns, designs are there. Observe it. This Qutub Minar is situated in New Delhi. It is a 5-story high building, and it was made by Qutbuddin Aibak, and the first floor of Qutub Minar was built by Qutbuddin Aibak and rest by Iltutmish, the next ruler of slave dynasty around 1229. And while over the years it was damaged by lightning, earthquakes, or other natural calamities, so further it repaired by Alauddin Khilji, Muhammad Tughlaq, Firuz Shah Tughlaq, Ibrahim Lodi, etc. Okay, so they all had contributed in making of Qutub Minar. So the first figure, figure 1, shows the first balcony of the Qutub Minar. Qutbuddin Aibak had this constructed around 1199. So Qutbuddin Aibak, he was the first ruler of the Delhi Sultanate under the slave dynasty. Okay. Notice the pattern created under the balcony by the small arcs and geometrical designs. Now just look at the balcony portion. Look under the balcony portion. Geometrical patterns angular है, देखिए कर्व्स जैसे कैसे बनी हुई है, एक एंगुलर कर्व्स बनी हुई है, ठीक है. एंड आफ्टर दैट ज्योमेट्रिकल डिजाइंस का भी यूज किया गया है. ज्योमेट्रिकल लाइक different squares, circles, semicircles, parallel lines, heptagon, pentagon. These are the geometrical designs. So देखिए कितने इस geometrical design का इसमें यूज किया गया है, कितने कट्स हैं, कितने आर्क्स हैं. So can you see 2 bands of inscriptions under the balcony? First of all, what is the meaning of inscription? Inscriptions means script on the stone. ठीक है, something which we write on the stone. ठीक है, stone के ऊपर कोई भी information, message, कुछ भी लिखा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसको हम inscriptions बोलते हैं. ठीक है, तो देखिए अरेबिक में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है. आई डोंट नो अरेबिक, सो देखिए बट यहाँ पे अरेबिक लैंग्वेज में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो कोई इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे मिल रही है. These are in Arabic. Notice that the surface of the minar is curved and angular. मीनार का जो surface है, जो
आपका मीनार का जो सरफेस है वो कैसा है, कर्व्ड है, एंगुलर है. प्लेसिंग एन इंस्क्रिप्शन ऑन सच अ सरफेस रिक्वायर्ड ग्रेट प्रिसीजन. ऑब्वियसली देखिए कितनी एंगुलर्स है, कितने स्मॉल आर्क्स हैं, ज्योमेट्रिकल डिजाइन है, और ऐसे में आपको ऐसे कर्व्स में, मतलब ऐसा भी नहीं है कि एक कर्व दे दिया, छोटे छोटे कर्व्स दिए हैं, और ऐसे कर्व्स में किसी भी इंस्क्रिप्शंस को प्लेस करना या फिर स्टोन के ऊपर लिखना बहुत ही केयरफुली, प्रिसीजन का मतलब होता है केयरफुली काम करना पड़ता है. Only the most skilled craftsperson could perform this task. Obviously, जो बहुत skilled हैं, ठीक है, जो ये काम बहुत बारीकी से कर सकते हैं, सफाई से कर सकते हैं, उन्होंने ही इस काम को किया है. Remember that very few buildings were made of stone or brick 800 years ago. नाउ आज के टाइम पे तो मोस्टली सबकी जो बिल्डिंग्स होती है, घर होते हैं, वो क्या है, ब्रिक्स और स्टोन से ही बनते हैं. बट आज से 800 साल पहले 800 years ago वेरी फ्यू बिल्डिंग्स वर देयर. ठीक है, बहुत ही कम बिल्डिंग्स थी जो स्टोन या ब्रिक्स से बनी हुई थी. सो अब सोचिए कि उस टाइम पे जब लोगों को पत्थर के बारे में भी इतना अच्छे से नहीं पता था, और उस टाइम पे लोगों ने जब ये कारीगरी देखी थी, जो भी ऑब्जर्वर्स थे उनके ऊपर इम्पैक्ट कैसे पड़ा होगा, स्पेशली 13th सेंचुरी में उनके ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ा होगा कि किसने बनाया है, कितना फैसिनेटिंग सा ये उनका सीनरी होता होगा. So between the 8th and the 18th centuries, kings and their officers built two kinds of structures. कौन से? The first were forts, palaces, garden residences, and tombs. Safe, protected, and grandiose places of rest in this world. And the second were structures meant for public activity, including temples, mosques, tents, wells, caravansaries, and bazaars. Kings were expected to care for their subjects, and by making structures for their use and comfort, rulers hoped to win their praise. Now, जितने भी आपके दो तरीके, जो राजा महाराजा थे, किंग्स थे, क्वींस थे, ठीक है, जितने भी ऑफिसर्स थे, उन्होंने दो तरीके की जो है बिल्डिंग्स बनाना स्टार्ट कर दिया था, स्ट्रक्चर्स बनाना स्टार्ट कर दिया था. क्या क्या? वो एक तो था आपका फोर्ट्स. आई बिलीव सबने जूनागढ़ फोर्ट देखा होगा, अंदर से नहीं तो बाहर से कभी ना कभी तो देखा होगा. फोर्ट्स हो गए, डिफरेंट टाइप्स के पैलेसेस हो गए, ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल है आपका गजनेर पैलेस. ठीक है, तो ये तो अभी रिसेंट का ही है गजनेर पैलेस, तो बट उस टाइम पे भी जो है डिफरेंट पैलेसेस बना करते थे. जल महल आपने सुना होगा, ठीक है. गार्डन रेसिडेंसेस होते होंगे. गार्डन रेसिडेंसेस मतलब कि पार्क्स वगैरह, अलग अलग तरीके के पार्क्स बनवाना. टॉम्स बनवाना. टॉम्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय टॉम्स? टॉम्स का मतलब होता है कब्र. ठीक है, आप सबने कब्र का सुना होगा. ठीक है, इट इज अ लार्ज प्लेस यूजुअली बिल्ट ऑफ स्टोन अंडर द ग्राउंड एंड वेयर द important or where the body of an important person is buried. ठीक है, it is a place usually built by stone under the ground where the body of an important person kept down, or you can say important person is buried. उसको हम टॉम बोलते हैं. और ये जो प्लेसेस होती थी काफी सेफ, प्रोटेक्टेड, काफी ग्रैंडियोस प्लेसेस होती थी. This now second was structures. Second was structures for their use and comfort. Rulers hoped to win their praise. Construction activity was also carried out by others, including merchants. They built temples. Large mansions of merchants has survived only from the 18th सेंचुरी. अब देखिए जितने भी किंग्स वगैरह थे उनको अपने काम पे वो जितना भी उनका काम होता था कि कितना टैक्स लेना है, रेवेन्यू जनरेट करना है, या जो भी काम होता था वो क्या होता था बताया करते थे. तो जस्ट लाइक दैट किंग्स जो थे अपने ही काम पे फोकस किया जा करते थे. एंड बाय मेकिंग स्ट्रक्चर्स फॉर देयर यूज एंड कंफर्ट रूलर्स होप टू विन देयर प्रेज. ठीक है, अब जितने भी लेबरर्स वगैरह होते थे वो क्या करते थे, अब उन सबको तारीफ सुनना, हमें भी अच्छा लगता है, उन्हें भी अच्छा लगता होगा कि अगर कोई
आपके जो राजा महाराजा आपको प्रेज कर दें आपके काम के लिए। तो राजा महाराजा क्या कर रहे थे, उनके वर्क को प्रेज कर रहे थे। दे बिल्ट टेम्पल्स, मॉस्क्स एंड वेल्स। ठीक है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी तो एक साइड में चलता ही रहता था। वो उन्होंने पब्लिक के लिए टेम्पल्स बनवाए, मॉस्क बनवाए, वेल्स बनवाए। However, domestic architecture, large mansions of merchants has survived only from the 18th century. जितने भी local merchants थे या फिर जो उन्होंने क्या किया था, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, लार्ज मेंशंस, जो पुरानी हवेलियां वगैरह थी 18th सेंचुरी के बाद से जितने भी मर्चेंट्स, बिल्डर्स, जमींदार वगैरह थे, उन्होंने जो भी मेंशंस बनवाई थी, हवेलियां बनवाई थी, वो प्रिजर्व्ड है। बट उससे पहले की आज तक हमें देखने को नहीं मिली है, वो अभी तक रिपेयर नहीं हो पाई है, मिली नहीं है। ठीक है, नाउ is engineering skills and construction. Monuments provide an insight into the technologies used for construction. Take something like a roof, for example. We can make this by placing wooden beams or a slab of stone across four walls. But the task becomes difficult if we want to make a large room with an elaborate superstructure. This requires more sophisticated more sophisticated skills. Now just look at this figure. Let me show you that picture, just a second. Okay, so class, monuments provide an insight into the technologies used for construction. Obviously इतने बड़े बड़े monuments वगैरह बन रहे थे, उसमें टेक्नोलॉजी की भी क्या है, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है कंस्ट्रक्शन के लिए। जैसे कि अगर हमें रूफ भी बनाना है तो हम रूफ कैसे बनाएंगे, हम वुडन बीम्स को क्या करेंगे, या फिर एक स्टोन के स्लैब को हम वॉल्स के, 4 वॉल्स के ऊपर अक्रॉस में लगा देंगे। पर जैसे जैसे हमें एक बड़ा रूम बनाना होगा, बड़ा घर बना होगा, अगर हमें उसको इलेबोरेटली सुपर स्ट्रक्चर, मतलब बहुत ही बड़ा सुपर स्ट्रक्चर बनाना है, कोई बड़ा सा रूम बनाना है, तो इसमें तो और भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड स्किल्स लगेगी, मतलब बहुत ज्यादा स्किल्ड क्राफ्टमैनशिप लगेगी ना, जिसको बहुत बारीकी से काम आता है। So between the 7th and 10th centuries, architects started adding more rooms, doors and windows to buildings. Roofs, doors and buildings were still made by placing a horizontal beam across 2 vertical columns. A style of architecture called trabete. Now underline the statement, the style of architecture called trabete or corbelled. ठीक है, अब देखिए 7th बिटवीन द 7th and 10th centuries जितने भी आर्किटेक्ट्स कौन होते हैं, आर्किटेक्ट्स आर दोज पर्सन्स who make the plan, who make the map of a house or a place or school, anybody, anything. ठीक है, जो एक घर वगैरह बनाने में, घर वगैरह बनाते हैं, उनका नक्शा बनाते हैं, उनको हम आर्किटेक्ट्स बोलते हैं, जो डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो आर्किटेक्ट्स थे जो वो ज्यादा से ज्यादा रूम्स जो हैं उसमें डालने लग गए थे, डोर्स वगैरह, इवन विंडोज टू बिल्डिंग्स। ठीक है, बिल्डिंग्स भी बनाने लग गए, विंडोज भी बनाने लग गए थे। तो जितने भी रूफ्स बनते थे या फिर डोर्स बनते थे, उसमें बीम जो लगाई जाती थी ना, वो हॉरिजॉन्टल ही लगाई जाती थी। और इस टाइप की आर्किटेक्चरल, अगर आप ये देख रहे हो फिगर, ठीक है, देखो फिगर 2 है, स्क्रीन इन द कुवत अल इस्लाम मॉस्क दिल्ली। ये देखो, ये इस्लाम मॉस्क है। अब यहाँ पे देखो कर्व है, ठीक है, पर जो बीम लगी हुई है यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सी बीम ही लगी हुई है ना, देखो हॉरिजॉन्टल बीम ही लगी हुई है, हॉरिजॉन्टल सही एक प्लेस लगा हुआ है, एक स्लैब लगा हुआ है।
ठीक है। तो ऐसे हॉरिजेंटल स्लैब्स ही लगाई करते थे, और इस टाइप के जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है उसको हम ट्रेबीट बोलते हैं या फिर कॉर्बेल्ड बोलते हैं। ये देखो फिगर 2 को बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम कॉर्बेल्ड या फिर ट्रेबीट बोलते हैं। कॉर्बेल्ड टेक्निक यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। The Trabit between the 8th and 13th centuries, the Trabit style was used in the construction of temples, mosques, tombs, and in buildings attached to large step walls, जिसको हम बाउली बोलते हैं। तो ये जो ट्रबीट स्टाइल है वो 8 से 13 सेंचुरी के बीच में काफी टेम्पल्स में, मॉस्क में, टॉम्स में, या फिर आप बोल सकते हो अलग अलग बिल्डिंग्स में, या फिर बिल्डिंग्स अटैच टू लार्ज स्टेप वेल्स, ठीक है। बहुत सारी स्टेयर्स होती है, उसके बाद नीचे एक वेल होता है, ठीक है। उसको वो उन्हें हम हिंदी में बाउली बोलते हैं। तो ऐसी चीजों में क्या है, अलग अलग आर्किटेक्चरल स्टाइल का यूज किया जाता था, और 8 to 13 सेंचुरी के बीच में तो ट्रबीट स्टाइल का या फिर कॉर्बेल्ट स्टाइल का बनता था। Now our next topic is temple construction in the early 11th century, which we will discuss in our next class. Now just look at this portion. Two technological and stylistic developments are noticeable from the 12th century. The weight of the superstructure above the doors and windows was sometimes carried by arcs. This architectural form was called arcuate. अभी हमने कॉर्बेल्ड और ट्रेबेट बोला, ठीक है। अब दूसरा जो एक स्टाइलिश या टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट आपका आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर था, वो क्या था? ये देखिए, ये वाला फिगर 5A में हम देख सकते हैं। The weight of the superstructure above the door and windows was sometimes carried by arcs. ठीक है, ये जो वेट है ये वेट है, उसके बाद इसके ऊपर जितना भी वेट लगा है उसको क्या है, हमने अलग अलग आर्क की शेप में कट किए, डोर्स वगैरह को कट किए और फिर लगाया। और ये जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है उसको हम आर्क्यूएट बोलते हैं, ठीक है। जस्ट लुक एट दिस, दिस इज द कीस्टोन एंड आफ्टर दैट सो मेनी पैरेलल लाइंस आर देयर। The true arc, the keystone at the center of the arc, transport the weight of the superstructure to the base of the arc. Okay, next is limestone cement was increasingly used in construction. This was very high quality cement which when mixed with stone chips hardened into concrete. This made construction of large structures easier and faster. Now जितना भी limestone cement है, ठीक है, limestone आपको हमें एक रॉक से मिलता है लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन सीमेंट जो है बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता था कंस्ट्रक्शन में, और जो क्वालिटी हुआ करती थी बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी हुआ करती थी। सीमेंट विच व्हेन फिक्स्ड विद स्टोन चिप हार्डन इनटू कंक्रीट। अब जितने भी आपके सीमेंट वगैरह बन रहे हैं, ठीक है, सीमेंट जो था जिसको स्टोन चिप्स आपने ब्लैक छोटे छोटे, जब भी रोड वगैरह बनती है तो ब्लैक छोटे वाले एकदम पत्थर देखे होंगे, तो उनको हम स्टोन चिप्स बोलते हैं। तो जितने भी सीमेंट्स वगैरह स्टोन चिप्स वगैरह लगी होंगी वो उसको कंक्रीट हार्डेंड इनटू कंक्रीट फिजिकल फॉर्म में हार्ड करके उसको बना देता है। दिस मेड कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर्स इजियर एंड फास्टर। ऑब्वियसली इससे जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थी वो क्या हो गई है, काफी इजियर थी कंपैरेटिवली, और काफी जल्दी भी बन जाती थी, ठीक है। नाउ लुक एट द फिगर 6। A painting from the Akbarnama dated 1590 to 1595 showing the construction of the water gate at Agra Fort. देखिए वाटर गेट तक पहुंचना था और इसका आर्किटेक्चरल स्टाइल देखिए। So now class, this is all about today. Go through this. हमने ये डिस्कस नहीं किया ना, just let me discuss this. Sorry. Figure 5B, true arc, detail from the Alai Darwaza, कुआतुल इस्लाम मॉस्क,
ठीक है, ये देखिए कुआतुल इस्लाम मॉस्क है, उसका ये दरवाजा है, वेल उसका ये डोर है, और आर्किट कर्व स्टाइल है ये, ठीक है। इस 5th ए में कौन सा यूज है, आर्कवेट एंड आर्कवेट शेप आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर इसमें यूज हुआ है। तो क्लास हमने आज 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स पढ़े, ठीक है, कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको क्या बोलते हैं, आर्किटेक्चरल फॉर्म्स जो हैं वो पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था ट्रबीट और कोरेल्ड, ठीक है, ये उसकी फिगर है ट्रबीट और कोरेल्ड आर्किटेक्चरल स्टाइल की। सेकंड है आपकी ये वाली, और इसको हम क्या बोलते हैं, जस्ट लुक एट दिस, यस, इसको हम क्या बोलते हैं, इस टाइप की आर्किटेक्चरल फॉर्म को आर्कवेट, क्या बोलते हैं, आर्कवेट। एंड ये जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है इसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी, इसमें जो है हमने आर्कवेट और कंक्रीट कोरेल्ड पढ़ा, ठीक है। इसमें जो है आपका सीमेंट की जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी यूज होती है, ठीक है। So this is all about today. Go through this topic, and if you face any problem, do let me know. I will definitely solve your query. Okay, class. Bye bye. Take care.